So, welcome to eighth episode of Badgasm. So, in this episode, we are going to talk about Apollo missions, why we stopped sending man to the moon, हमारे अपकमिंग इसरो के मिशंस, नासा और इलॉन भैया के बाकी सारे प्रोजेक्ट जिसमें हेलो वो चाचा। हाँ इलॉन चाचा जो जिसमें वो इंसानों को भेजने वाले हैं 2024 में with working with NASA. So we'll talk about all of those projects and also the possibility of life on Mars, how practical it is to focus on the tasks that are being concentrated towards development on Mars और कितनी उसकी possibility है कि हम वहाँ पे जाके आराम से settle हो सकते हैं या humanity वहाँ पे survive कर सकती है क्योंकि गोल्डीलॉक जोन का आखिरी planet वही है तो पॉसिबिलिटी है बट बहुत हार्ड है सो विल डिकोड ऑल ऑफ दैट एंड स्टार्टिंग विद द फैक्ट कि हमने अपना बहुत ज्यादा ध्यान अभी मार्स पे डाल दिया है क्योंकि मून को तो हम भूल चुके हैं 1970 के बाद नासा को लगा कि भाई मून हो गया हम लोग कूद वूद लिए वहां पे झंडा लग गया हमारा बाकी तुम लोग के जाने की जरूरत नहीं है हो गया क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है उसका कोई मतलब नहीं अब सिर्फ हम लोग क्या कर लिए हैं कि जितने हमारे नेटवर्क्स हैं सैटेलाइट्स हैं हम लोग उसको लॉन्च करते हैं स्पेस में उससे हम अपना कनेक्टिविटी पे इम्प्रूवमेंट पे लगे हैं लेकिन मतलब वहां पे मैन मिशंस नहीं हो रहे हैं सो उसका क्या आप रीजन लगता है क्या हम लोग गलती कर रहे हैं या एक ये करेक्ट चीज है करना कि इंसान को ना भेजना आई डोंट थिंक मून को इग्नोर किया जा रहा है उस तरह से जैसे हम सोच रहे हैं बिकॉज जो सबसे पहले बार वॉयेजर एयरक्राफ्ट किया था इट टुक द पिक्चर्स फॉर द वन ऑफ द 62 मून्स ऑफ सैटर्न टाइटन राइट on that hydrocarbon lakes are there and completely the building blocks of protein and amino acids. Then there was Enceladus, which proved that Earth doesn't have the monopoly on water. So there is still that probe was Cassini probe that Cassini, found right. out that found out that Enceladus moon has something. It is a dry frozen ball of ice, but inside it there is lake, and because of the fumes of water coming out from it, we confirm that it's not just us who has water, and we still do not know if microbial life exists in those lakes of moon. Because what is actually dangerous to us, or the gases that are toxic to us, might be life giving to some other form of life. Life doesn't only mean so talking about being ignored, I don't think it's being ignored because European Space Agency in 2022 is going to send another spacecraft for Europa, the moon of Japan, right? Because it wants to confirm that what is there beneath the surface of the ice there, because in NASA in 2011 actually got heat signatures from the surface of the Europa. So there has to be some kind of existence down there and what are those red cracks around on the surface of the Europa. They want to actually find it out, and in below the surface of there is a film also, Europa Report. See, they have actually imagined what life could be out there. So they have mostly aquatic life because no one can be there, and the bioluminescence animals and organisms were shown in that film. So it's a possibility, and people actually are going to explore Europa even more. Okay, I guess Europa is a very interesting moon when we talk about it in a whole context because when we used to and when we used to observe Saturn and Titan, even Titan and Europa moving from the telescope, we found it very interesting because their movement was very glossy to look at from the telescope at the night in the dark. So yeah, those are very interesting things to look in the space, and space is very interesting in all. So this is the general context. So anyways, so coming back to the topic, so अगर हम इंसान को नहीं भेज रहे मून पे अभी उस मून से रिलेटेड तुमने थ्योरी सुनी है बहुत सारी सी थ्योरीज है किसी ने कहा कि मून लैंडिंग कभी हुई नहीं जिसपे कि डिस्कवरी का पूरा कैंपेन चल रहा था कि आई एम सेइंग मतलब ऐसे लोग को वैल्यू कौन दे रहा है यार तुम्हारे पास जब कोई प्रूफ नहीं तो तुम क्यों जबरदस्ती के वो थ्योरी अपनी जनरेट कर रहे हो मतलब उसका कोई बात यहाँ पे प्रूफ की नहीं होती। हाँ
की बात होती ही नहीं है उनको, जो मतलब ना एक होता है कि मतलब तुमको विश्वास नहीं करना होता किसी भी दी गई चीज पे, हाँ हाँ तुम विश्वास नहीं करोगे। हाँ। हम्म, No, no. Actually, at that point of time, there were space movies like Odyssey being made in the okay same years. हम्म आसपास ही एक दो साल के हम्म फर्क में. हम्म Or though, and NASA has actually borrowed a camera from the हम्म same production film that was going to make space movies. ओ अच्छा। ओके That's why ओके the same kind of lens of Nikon. I don't remember Hmm. the. It was a. I remember the name, but I'm not getting it right now because it has very low aperture. And मतलब सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये था कि उसमें पिक्चर्स में बैक में स्टार्स और उसकी फोटो क्यों नहीं आ रही एस्ट्रोनॉट्स के, so that is why the means the aperture was very low of those cameras, and that is why it was not able to capture the objects that were lying on a distance. So it was a simple logic, but इतना bullshit इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, क्यों नहीं, अरे यार पागल हो क्या पूरा रिसर्च तो कर लो पहले, फिर तो थ्योरी फॉर्म करो And तुम. also why the flag was waving. The flag. हाँ राइट It is something in space that if you move something, it won't come to rest because there's no inertia or friction. So if you actually start moving it, the flag, or it starts little wave will be there for some time, राइट no? राइट So they were like, "How is air there on the moon?" They even said that. अरे वो भी कह रहे थे कि पाँव का इतना बड़ा निशान कैसे है, उनके हिसाब से पाँव का बहुत बड़ा निशान था। वो यार कुछ उतना हैवी थ्योरी सूट तो होता है भाई. 50 बना लेते, हाँ हाँ वो हैवी थ्योरिया सूट तो होता है 50 यार. बना लेते। वही तो है मतलब, अगर हम वेस्टर्न कल्चर में देखें उसमें नॉर्मल जो हैपनिंग्स है ना, कॉन्स्पिरेसी निकल के आ जाते हैं कि नहीं ये पॉसिबिलिटी, एक चीज के 1000 पॉसिबिलिटी निकाल देते हैं हम लोग, यहाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब उसका कोई कॉन्टेक्स्ट ना हो. They और even said that it is not possible to cross that Van Allen belt of electromagnetic waves that our Earth has. राइट But it राइट was also proven that जो भी हम लोग sheet metal use कर रहे थे for the rocket, the steel and the aluminium sheet, it can actually block 99% of the radiation. So it was राइट easy to राइट go. And I guess lead was a major component in that, as per I recall. And उसमें पाया गया कि पहले ही उन लोगों को डाउट था कि ये क्या क्रॉस कर पाएगा, बट उन्होंने जब उसको टेस्ट करा तो वो काफी सफिशिएंट था क्रॉस करने के लिए. सो इतना ज्यादा उसमें कोई चीज फंसी नहीं एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि Yeah, मैंने ये because it's चीज a thin या sheet. And इट वाज अ people वेरी like how थिन it शीट. can actually cross that belt. How it can go there without getting damaged. राइट राइट. So इस theory पे actually I was researching it for the English podcast Curious Bug, so I was coming across all of these points, और majorly इसमें वो लोग involved थे जिनको किसी एंगल से, मतलब ये सारी थ्योरीज ना हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये अलग अलग इंडिविजुअल्स की है, सबने मिला के ये बोल दिया कि जो ये कलेक्टिव ग्रुप था कि मून लैंडिंग कभी नहीं हुई. सो अगेन द गवर्नमेंट फोकस ट्राई टू आंसर सम क्वेश्चन, बट अब जो नहीं मानेगा वो क्या ही करेंगे, उसको वो अरे लोग पढ़ भैया चुके ऐसे हैं. तो फिर फ्लैट अर्थ थ्योरी वाले भी लोग हैं, वो उनका नहीं They सुनोगे still वो believe for some reason. They हाँ still believe for some reason. I don't know what. I didn't even think of watching that video. Why there is a proper video of या ऑन involving यूट्यूब। all the conspiracy theorists only about the flat Earth. I did not even watch it. Like seriously. It doesn't make sense. So there is Our Vedic science from the like time immemorial knows that Earth is round, Moon is round, all the planets are round, and we are round, going round and round. And these people are today saying that it's flat after we have gone into space and watched it and taken pictures. अरे अरे भाई just अरे no. मेरी एक दोस्त थी हाँ हमारे ही बैच की, वो एक दिन हम सब लोगों को बैठा के भाई 1.5 घंटे इसी पे लेक्चर दे रही थी कि क्या? अर्थ फ्लैट है, और हमने कहा भैया माता श्री जी जय हो, आप जो है महान है। हमने कहा भैया मतलब गजब है, मैंने उसके सामने नहीं बोला, मैंने कहा भैया महान है ये औरत, पता नहीं कहाँ से थी, कहती मैंने यार यूट्यूब से देखा। हमने कहा फिर बहुत बढ़िया, हमने कहा बहुत बढ़िया थ्योरी आपने। वो पॉसिबल कैसे एक स्पेस में ऐसे ऐसे घूमे, क्या धरती से सारे बैलेंस ही नहीं बनेगा भाई, क्या क्या लॉजिक है ये. अरे उनके Some लॉजिक kind of problems in everyone's life and some kind of struggle should remain ताकि एक खाली दिमाग शैतान का घर बने ना. Seriously. People there are so मतलब इनके पास इतना टाइम कैसे होता है to think that the earth is flat and moon is flat and everything is flat. Like seriously. टाइम है उनके पास, टाइम है उनके पास। इतना टाइम है बंदों के पास, इतना स्ट्रगल होता है लाइफ में, they don't think all this shit. ये Right. अलग. Okay. So coming on to the future aspects of our
ह्यूमैनिटी, क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ पर टाइम में ऐसे फेज से पहुंच जाएगी कि जिसपे हमें मूव करना ही करना पड़ेगा. सो पहली पॉसिबिलिटी हमें मून की लगती है कि हम मून को कॉलोनाइज कर सकते हैं. और इवन तुम अगर स्पेस एक्स की साइट पे जाओगे ना, तो उनको एग्जैक्ट पता है कि मतलब उनका प्रोग्राम है कि 6 महीने लगेंगे यहाँ से स्पेस क्राफ्ट को मून सॉरी मार्स पहुंचने में. और जो उनका रिसेंट अभी रॉकेट प्रोजेक्ट है उस पर भी वो लोग इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं. और वो ट्राई कर रहे हैं कि वहां पे CO2 वहां, और वहां पे ग्रेविटी 36% है दैट ऑफ अर्थ कंपेयर किया जाए तो. 36 है या और 40 है? 40 है शायद. नहीं 36 है, उन्होंने एक्यूरेटली अपने 36. साइट पे लिखा है. और जो वहां पे ओवरऑल इन्वायरमेंट है उसमें नाइट्रोजन भी है. सो नाइट्रोजन CO2 है. सो उन्होंने कहा कि अगर हम वहां पे उसका फ्यूजन करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हम वहां पे लाइफ को कुछ हद तक सस्टेन कर सके, मींस थ्रू आर्टिफिशियल मींस. और मुझे पता नहीं क्यों मतलब ऐसा लगता है कि अभी अगर पूरा अगर हो भी जाए, मतलब हम सक्सेस हो जाए 2024 में या इवन 2028 तक भी, सो यहाँ से लोगों को उठा के वहां पे बसाना, या एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि बहुत रिच होगा उसको वहां पे बसाना, उसमें भी बहुत सारे टेक्निकलिटीज होंगे और बहुत सारी चीजें फेल हो सकती हैं. बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर तुम पैसा है तुम चले भी गए फिर भी वहां के एनवायरमेंट तुम ऐसे वो काइंड ऑफ एक सडन क्या बोलते हैं एज अ शॉक आएगा बॉडी को. किसी किसी की भी और किसी भी ह्यूमन बीइंग के बॉडी के लिए बहुत हार्ड चीज होगी एडजस्टिंग टू द इन्वायरमेंट ऑफ मून, सॉरी टू द इन्वायरमेंट ऑफ मार्स. क्योंकि चीज ये है कि वहां पे एक तो पहली चीज ग्रेविटी का फर्क पड़ेगा. दूसरा वहां पे सनलाइट जो है वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा एक्सपोजर मिलता है. उतने पीछे तुम चले जाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी जो सनरेज होंगी वो डिफरेंट तरीके से तुम्हें तुम्हारी बॉडी पे रिएक्ट करेंगी. प्लस अदर फैक्टर्स वहां पे होंगे, जैसे कि अभी वहां पे बहुत सारा एरिया डिस्कवर्ड नहीं, क्योंकि जो हमारे रोवर्स है जैसे क्यूरियोसिटी और बाकी सारे वो भी अभी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं. उन्होंने ऐसा नहीं पूरा मार्स घूम के बता दिया कि हाँ भाई ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है. ऐसा ऐसा कोई चीज नहीं है. और जो हम लोग वाटर का हम लोग वहां वो ढूंढ रहे हैं कि मतलब वहां पे जो क्रेटर्स बने हैं, जो इवन स्ट्रक्चर्स हैं, वो लगता है कि मतलब उस पे कभी वाटर था, कभी वो बहुत फलता फूलता प्लेनेट था, क्या पता वहां पे पहले लाइफ थी. बट अभी वो सिचुएशन नहीं है. सो हम अगर वहां रहेंगे तो हमें बहुत सारा अपने यहाँ से रिसोर्सेज लेके जाना पड़ेगा ताकि हम वहां पे सरवाइव कर सके और वहां पे सस्टेन कर सके लाइफ. सो आई थिंक all these complications make it very hard to live a life on a planet like Mars, the red one. भाई It's not बहुत ही just डिफिकल्ट, that. It's not बहुत ही that's- बहुत ही डिफिकल्ट है. बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है. तुम और ये जो तुमने बात की ना अमीर लोग जाएंगे, भाई हाँ. अमीर लोग नहीं जाएंगे. एक्चुअली में जो अमीर हैं और जो जाना चाह रहे हैं वही जाएंगे. क्योंकि इलान मस्क ने भी अपने प्रोजेक्ट पे कहा कि वो इंटरव्यू में कहा था कि मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब कोई ऐसा बंदा होगा जिसको लग रहा है कि मैं जाऊंगा वहां पे आराम से रहूंगा. ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है. पहले के पहले जो 50-60 साल लोग जाएंगे वो बहुत डिफिकल्टी में रहेंगे. क्योंकि हाँ. भाई ना एनवायरमेंट वहां पे प्रोटेक्ट करना, अगर तुम एनवायरमेंट किसी तरीके से क्रिएट भी कर दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल कुछ एस्टिमेट है कि अराउंड 7% जो है तुम अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हो वहीं की मदद से. जो पोलर आइस कैप्स हैं उनको उनकी मदद से तुम क्रिएट कर सकते हो. प्रॉब्लम यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की वो मार्स के पास नहीं है. तो जब भी कोई सोलर विंड चाहेंगे वो सब एनवायरमेंट तुम्हारा, क्योंकि एक्चुअली में जब मार्स बना था तो उसके पास एटमॉस्फेयर था, लेकिन ये इसी मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण नहीं है. वो मैग्नेटिक फील्ड इसलिए नहीं है कि उनका जो मास है वो बहुत ज्यादा कम है. पृथ्वी के मुकाबले, अर्थ के मुकाबले मास बहुत कम है. जब किसी प्लेनेट का मास एक डेफिनेट लिमिट से नीचे होता है तो वो उसका कोर मूविंग नहीं हो पाता और टेम्परेचर हीट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से टेम्परेचर के मूवमेंट, वो कोर के मूवमेंट, अंदर मूवमेंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं अर्थ के. क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक मास बहुत ज्यादा है. मार्स का उस लिमिट का है नहीं मास जो है, इसलिए वो कभी उस किस्म से जनरेट ही नहीं कर पाएगा अपनी मैग्नेटिक एबिलिटी को. तो तुम्हारे पास हमेशा एक खतरा है कि अगर तुम एनवायरमेंट बना भी लो तो भी वो उड़ जाना है. तो फिर उसके लिए तुमको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी. दूसरी बात है भाई रेडिएशन का. ठीक है, वहां पे रेडिएशन बहुत ज्यादा है, तो फिर तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा उसके लिए. ऑक्सीजन तो चलो ठीक है, वो तो स्पेस सूट में अगर कोई कह रहा है कि मतलब मैं स्पेस सूट में घूमूंगा, ठीक है, बाहर, तो चलो वो भी 1 मिनट के लिए एक्सेप्टेबल है फॉर मतलब रिसर्च पर्पसेस के लिए. क्योंकि अंटार्कटिक में भी लोग बाहर नहीं निकलते, उसी कंफाइंड स्पेस में रहते हैं. या फिर सबमरीन वाले लोग, तो मतलब ऐसे लोग जो होते हैं उनको हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट के लिए भेजा जा सकता है. उनकी ट्रेनिंग टफ होती है, ये मैं मान सकता हूँ. लेकिन भाई फिर वही बात आ जाएगी कि इतना रेडिएशन जो है
तुम्हारे बोन डेंसिटी को इफेक्ट करेगा। ग्रेविटी कम है तो तुम्हारे और भी चीजों को, इवन वहां पे प्रेशर इतना कम है ना कि एक्चुअली में तुम्हारा वो बॉयल हो जाएगा अंदर के लंग्स में जितने सब ये सब है या क्या ब्लड बात वगैरह कर सब ये। बिल्कुल भाई, तुम पढ़ना इस चीज को। प्रेशर अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो जितनी भी चीजें हैं इंसान के फ्लूइड, बॉडली फ्लूइड जो होते हैं वो सब एवापोरेट कर तो जाएंगे। मतलब वहां पे तुमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है? कम है भाई, कम है, कम कम है, है, कम है ना, कम है। एक लिमिट से कम हो जाता है तो 1% है ना, अराउंड अर्थ के 1% है अच्छा, वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ओके। वो कम है, वो कम है तो इसलिए तुम्हारा इवापोरेट हो जाएगा। तो एक ही चीज नहीं है ना भाई, तुमको 5-6 चीजें, और उसके बाद साइकोलॉजिकल इफेक्ट दूर रहने का, क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाई तुमने फ्लाइट पकड़ी पहुंच गए फिर से रिटर्न टिकट ले लिया। तो एक्चुअली में तुमको बहुत सारे कंस्ट्रेंट देखने पड़ेंगे ना, कि क्योंकि अगर 2 महीने भी मैं मान रहा हूँ बाई एडवांस एस्टिमेट्स, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं नासा के ही जो कहते हैं कि 2022-24 में हम 2 महीने के अंदर मार्स पे भेज देंगे। तो अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो 2 महीने 4 महीने, अगर मतलब 2 महीने जाने के 2 महीने आने के, तो ऐसा तो है नहीं भाई कि जैसे गए लौट आएंगे वो। ठीक, तो ये भी तो चीज है कि इतना सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, बॉडी पे इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे भाई उसको ले जाने में। अरे वो कौन है जापानीज जिसको स्पेसएक्स ले जाने वाली है, जापानीज को बिलियनियर है ना जिसको मून पे ले जाने वाली है स्पेसएक्स टूरिज्म के लिए मुझे नहीं पता। 2025-26 में। हाँ हाँ है। अच्छा, बंदे ने साइन अच्छा, अप अच्छा। किया, उसने काफी पैसे उसे दिए हैं, जापानीज बिलियनियर है वो। हाँ, तो हाँ। उसने एक्चुअली में पैसे दिए हैं 2025 या 26 में स्पेसएक्स को कि वो टूरिज्म पे जाना चाहता है मार्स पे, अच्छा। सॉरी मून, मून पे। और नासा का आर्टेमिस मिशन भी है जो कि दोबारा से एक हाँ, महिला और एक पुरुष को भेजेगा। हाँ, हाँ, अ, तो एक वुमन को चार, सेंड करने वाले वो। हाँ हाँ। तो वो है, लेकिन भाई उसमें यही कंसिडरेशन है ना कि रेडिएशन का खतरा बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो भेजने बंद कर दिए लोगों ने, क्योंकि वो अच्छा। फिर बहुत ज्यादा, हाँ एक कारण ये भी था कि उस किस्म से आप उसको रख नहीं पा रहे थे लोगों को, उसका खर्चा बहुत ज्यादा पड़ रहा था। तो ये एक चीज थी। यूसाको मेइजावा, ओके। हाँ ये हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। ये वन ऑफ द 8 पीपल है जो फ्लाइट करेगा, राइट? ओके। हम्म सो just that अगर स्पेस, हमारे अपने स्पेशियस और एयरक्राफ्ट की भी बात अगर करते हैं तो दे space is pure vacuum. Hurtling through the space is not a big deal. But obstruction से deal करना, उसे properly fly करना, and actually the speed is very slow. Because even if you're saying that you will be landing there in 2 months, if you say that Mars में अगर हम 2 महीने में जा सकते हैं, अगर आप टाइम कम भी करना चाहते हो उसका, तब भी वो इस तरह से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो एक्चुअली इंसान बैठा है, will he be able to survive that kind of pressure and speed through the space? Because even when you launch into the space, then also इतना ज्यादा प्रेशर होता है बॉडी पे, and there's so much of training involved to deal with. Your heartbeat should be a particular level. तुम्हारा प्रेशर जितना भी बॉडी झेल सकती है, these things have to be maintained even during. तुम्हें क्या लगता है कि traveling through one place to another in that kind of speed, is it possible for a human body to sustain? एक तो we live in a very और अगर स्पेस में हम लोग भेजना चाहते हैं, so we cannot send anything bulky. right. It has to be lightweight, and if it has to be lightweight, it will be significantly small. जितना जरूरी है उतना, nothing extra. We always tend to shed off all the extra weight, always, even through the leaders, through the payload and the people there. If you use less number of people, then mission may fail because a single person cannot do everything. Right. Even in movies, they are not able to do. If one is a microbiologist, another one is an engineer, and sometimes there's only one engineer going with the astronauts. Right. The rest of the 2 are pilots. Then there are scientists who are going along with them, who actually have no idea except for what is taught during the training of the astronauts. So these are the factors. And radiation की जैसे बात की, radiation causes from cataract to cancer, and the zero gravity crushes the body at the end. You have you are not the same when you come back. So how many people really want to experience that and go there? Like the idea of drinking that distilled urine itself, it's so obnoxious and it's so yucky. I don't even I Bear Wild, वो Bear Grylls गुरुजी वो कर सकते हैं, उनको he can go actually. I can't.
like वही तो मैं कह रहा था. space, but हाँ, this is all these things need a certain level of training, a mindset, and a willingness that even if I have to sacrifice my life, I will Hmm. be there, I will experience it, I will die for space, like Kalpana Chawla did. I'm Right. for space, I'll live in space, I'll die for space. That kind of mindset is needed even for the astronauts. And I see two complications in this. First, कि जो वहां पे जैसा कि हिमांशु ने बोला कि वहां का जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है वो इतना स्ट्रांग नहीं जितना अर्थ का. अर्थ के पास इतनी सारी प्रोटेक्शन शील्ड्स हैं, इवन कि कोई भी एस्टेरॉयड आता है तो वो खत्म हो जाता है. बट वहां पे क्या है, जुपिटर के जस्ट अगला हम ही है. सो जुपिटर हमारे लिए इतना प्रोटेक्टर का हेल्प करता है कि वो बहुत सारे को डेविएट कर देता है, बहुत सारे बिग थ्रेट्स को. बट वहां पे ऐसा नहीं होगा, कि वहां पे क्या है कि एक तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, दूसरा वहां का एनवायरमेंट इतना टाइट नहीं कि चीजों को होल्ड कर सके. सो अगर कोई ऐसा कभी भी ऐसा उड़ता हुआ थ्रेट आ गया, सो इट विल बी कॉजिंग मैसिव डिस्ट्रक्शन. और हमने ये चीज देखी हुई है पास्ट में भी कि मार्स से हमेशा टकराते रहते हैं. तो ऐसा ऐसा नहीं है कि मार्स बहुत सेफ प्लेनेट है या वहां पे चीजें होती नहीं है. So to overcome that, we need to establish an artificial shield to the particular site so that we can protect ourselves to such extent. और वहां जाके डेवलपमेंट करना. और दूसरी पॉइंट जो तुमने बताई कि वहां पे जाने के बाद इतने सारे चेंजेस हो गए, प्लस वहां पे वही इंसान रह सकता है जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले. अब ट्रेनिंग में या तो मिलिट्री पर्सनल्स हो सकते हैं, या तो पीपल विद नो विल टू लिव लाइफ, और समथिंग समवन लाइक द वन इन इंटरस्टेलर, जो वो बंदा वो ब्लैक होल में ही चला जाता है लास्ट में. सो समवन विद दैट अमाउंट ऑफ विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस हिम और हरसेल्फ विद नो मोटिव ऑफ लिविंग लाइफ. और ये चीज सेम दिखाई गई थी यूट्यूब की डॉक्यूमेंट्री में. यूट्यूब की जो स्पेशल सीरीज थी, जो आई गेस क्या नाम था, ओरिजिन में भी यही दिखाया गया था कि जितने सारे लोगों ने साइन अप किया था उस प्रोग्राम के लिए, कहीं ना कहीं अपने लाइफ से खुश नहीं थे. उनका बहुत क्या बोलते हैं, कनेक्शन नहीं था धरती पे. तो वो चाहते थे कि वो स्पेस में जाके कुछ अपने लिए अच्छा कर जाए मरने से पहले. दैट वाज देयर माइंडसेट. So this changing all of these things in a positive manner, shifting the whole paradigm to different side, is a whole new task. And making it happen would be not only for Elon Musk. मतलब अगर Elon Musk पे छोड़ दिया जाए, वो बंदा दुनिया जहान की जितनी कोशिशें करना चाहे कर ले, उसके लिए बहुत हार्ड होने वाला. अनलेस एंड अनटिल 10 या 100 लोग ऐसे और आके स्पेस प्रोग्राम में एक्टिव हो जाएं, ऐसे 100 बिलियनर्स और द पीपल विद गुड रिसोर्सेज try to accumulate some power and resources, and to try to put all of those efforts in that particular area. सब तब हो सकता है कि हाँ भाई, एक स्पेसशिप जा रहा है, दूसरा आ रहा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां पे चीजें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है. जब पूरी धरती वाले पूरी जान लगा देंगे ना, तब पॉसिबल है कि हाँ, मार्स को हम थोड़ा मोड़ा अपने तरफ शिफ्ट कर पाएंगे. ये एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है. और मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतना ही तुम्हें प्लेनेट पे रहना है, शिफ्ट करना है, तो धरती को बचा लो. पोल्यूशन और इस पे भी हम लोग काम कर लें, अगर बेटर हो जाए तो फिर क्या ही बात है. लेकिन दिस इज माय एंगल ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स. हिमांशु, आवाज नहीं आ रही. आ रही है, अब आ रही है. हाँ, हाँ आ रही. हाँ, तो इसकी बात ये है ना कि यार देखो, धरती को तो हम बचा ही सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ह्यूमन नेचर ये है एक्सप्लोरेशन का. ह्यूमन हमेशा एक्सप्लोर करना चाहता है. पूरी क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसी पे बेस्ड थी कि वो एक्सप्लोर करना चाहते थे, वो कॉन्कर करना चाहते थे, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी बढ़ी. और दूसरी बात भाई, इस लेवल जो अभी हमारी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है वर्ल्ड में, उस पे नासा के वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि उस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी से ट्रांसफॉर्म करना बहुत, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है. किया ही नहीं जा सकता अनटिल अनलेस तुम टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन लाओ. ठीक है, तो 100 बिलियनियर अगर आ भी जा रहे हैं तो उनका सिर्फ पैसा नहीं, मतलब बहुत क्रिएटिव माइंड्स लगेंगे ऐसे लोगों के जो वाकई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सके. और भाई टेक्नोलॉजी 1-2 साल में अपग्रेड नहीं होती, खास करके स्पेस वाली टेक्नोलॉजी. उसको डेकेड्स लग जाते हैं रिसर्च करने में. तो भाई अगले 30-40 सालों तक तो कोई कुछ खास स्कोप नहीं है. तुम भेज सकते हो टूरिज्म के लिए, कि जो कुछ लोग हैं कि जिनको बहुत जाने की इच्छा है, बहुत उत्सुक है वो बाहर जाने के लिए अर्थ पे, वो जा सकते टूरिज्म के लिए, मतलब गए और लौट आए. उस किसी वाला हिसाब, अगर तुमको कॉलोनी बसानी है भाई वहां पे, तो बहुत ही चैलेंजिंग है भाई, बहुत ही चैलेंजिंग चीज है वो. क्योंकि एक तो वहां पे डस्ट स्टॉर्म आते रहते हैं परमानेंट, और वो डस्ट स्टॉर्म ऐसे नहीं कि एक इलाके में आते हैं,
जब आते हैं तो पूरे मार्स को एक ही साथ कवर कर लेते हैं, तो उसको तुम कैसे झेलोगे? मार्स को एक आते रहते हैं बहुत फ्रीक्वेंट, उसको कैसे झेलोगे? एस्टेरॉइड की बात तुमने कर दी, उसको कैसे झेलोगे? ठीक है। और वहां पे तुम रह के सारी चीजें, मतलब एक अर्थ की सप्लाई ना रहे, तुम खुद से ही सारा क्रिएट कर सको, तो उनका जो सॉइल है रेगोलिथ, उसको कैसे उसकी मदद से तुम कैसे उगा सकते हो कोई चीज? अगर तुम हाइड्रोपोनिक्स लैब भी बना रहे हो तो भी जो है उसको कैसे सरवाइव करोगे, कैसे जो इंस्टॉल करोगे उसको? तो उसकी बहुत सारी दिक्कतें हैं। मतलब 1-2 लोग जा सकते हैं अगले 5-10 सालों में जाके, बस वहां पे ऑर्बिट लगा सकते हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। या किसी को लैंड भी करवा दिए तो भी कोई फायदा नहीं, वहां पे उनको वापस आना ही पड़ेगा, उनकी कोई पास चारा नहीं है। तो एक्चुअली में भाई तुमको अभी वो रोवर वाला सिस्टम ही जारी रखना पड़ेगा, रोबोट वाले, तो वो जारी रखना पड़ेगा तुमको, उसके अलावा कोई चारा नहीं फिलहाल इस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी से, तो कोई चारा नहीं। That's not the only thing. जैसे आप बता रहे हो कि वहाँ पे gravity is 36% of Earth, no? तो वहाँ पे अगर आप कॉलोनी बसाना भी चाहते हो, you need food, you need some kind of cultivation in large amount, in sufficiently large amount that you can feed the colony that you have placed there. और उसके possible नहीं होगा. How many shelters and closed spaces you will build on Mars, and that taking the resources from the Earth. You're not taking the resources of the Mars to build something. No, you're taking many of the things from the Earth to build something there, and वो भी sufficient नहीं होगा, because if the gravity is less, तो ये होता है कि trees do not grow properly. वो भी होता है, and even if they grow, तो ये होता है कि I have seen in one of the documentaries that if we plant trees in areas which are low in gravity, the seeds will actually be dispersed in the environment itself, and they will kill themselves through the radiation or something else. So open space पे तो कर नहीं सकते. You will have to have closed space and labs to do that, and how will it be sufficient for a whole colony to survive? वो चीज. And the second thing is space का, अगर you have to go beyond something, interplanetary space exploration जो होता है, which people dream of, you do not have a GPS for that. There's only one deep space network that is in California, Australia and Spain. Apart from that, like from the student project to the space exploration, we use everything from that. Apart that we do not have a GPS of our own. और एक distance cover करने के बाद communication fail होना from the base in the earth is very much possible. So that's one of the reasons people do not want to send humans there. Because if the communication fails and they do not come back, who will be answerable for it? You can actually establish the communication which is salvageable and send the feed there. But there's a complete possibility that if any malfunction happens on some distant planet and you're not able to fix it with the resources available on the spaceship itself, impossible to come back. Right. And मैंने भी पढ़ रहा था एक इस निष्ठा के पॉइंट में ऐड करना था कि अगर कहीं इमरजेंसी, जैसे इसने कहा ना कि वो अगर कुछ हो जाता है तो तुम क्या करोगे, कम्युनिकेशन फेलियर. इवन केस ऑफ इमरजेंसी, मान लो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं भी हो रहा है, कुछ इमरजेंसी आ भी गई, तो कम्युनिकेशन का लैग ही 8-10 मिनट का भाई, कम से कम. ठीक है, तो वो फिर तुम कम्युनिकेट करोगे कैसे अगर कुछ इमरजेंसी आ गई? तो मतलब ग्राउंड पे जो लोग हैं वहां पे, उनको डिसीजन बहुत क्विक लेना पड़ेगा. तो वो भी एक चीज है ना कि तुम भेजोगे किनको? फिर ऐसे लोगों को भेज दिया कि जो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कुछ, फिर तो पैसे भी जाएंगे, जान भी जाएगी, और भाई जान का खतरा बहुत, इसीलिए भेजना बहुत रिस्की है उनको वहां पे. The so-called welfare schemes for the poor will never actually allow us to go to that length and in resources to that length, because firstly it's like this is our home. जो हमें पहले मिला है हम उसको सेव नहीं कर पा रहे, and we are trying to colonize something which is completely barren. I so want to do it. Like I want to go on the moon, I want to go on the Mars. Really, and the Juno spacecraft that is actually orbiting the Jupiter planet, it is trying to find that if there is a solid surface beneath the raging storms of helium and hydrogen that covers the Jupiter planet. They've been trying to find some kind of ground even there. Like, so even like this is very exciting for the humanity as a whole. I've sent one Voyager spacecraft also with
CD or some kind of a record which has sounds and sights of the earth and messages from the people of the earth. If some human far more intelligent than we are finds it, and they come to us if we cannot go to them. So and this idea was given by Carl Sagan, the astronomer, famously known. So people so working towards it. They want to find some other galaxies. Right. Adding that, when Kepler telescope was launched in space, within a month, it actually discovered thousands of planets. Yeah. Within a month? Okay. Within a month. Okay. And till now, it has actually explored only the 2% of the whole visible night sky that is available to us. Still, it has found more than 1,000 planets. So imagine the extent, and there's one Earth-like planet also found in a nearby galaxy. I don't know how many light years it is away. It's more than 150 light years away. In Andromeda. It's in Andromeda. It's in Andromeda? Yeah. And it's still in the evolution phase. जब मैंने इसको देखा था उसमें ऐसा possibility थी कि यहाँ से कोई अगर रेडियो सिग्नल इमिट किया गया, so वो वहाँ पे 150 years के बाद पहुंचेगा, और वहाँ पे जो evolution phase है वो kind of भी कह सकते हो डायनासोर, हमारे डायनासोर वाले फेज से आगे थोड़ा जा चुका है. ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि उसका फॉर्मेशन अभी नया है. सो ये वो वाला प्लैनेट है. बट कमिंग बैक टू द डेवलपमेंट टॉपिक, सो मैं अभी वो पढ़ रहा था जो 2018 में स्पेसएक्स ने लॉन्च किया था इनसाइड लैंडर, सो मार्स मिशन का. सो उसके लिए 2009 में जब अनाउंसमेंट हुई थी कि $20 मिलियन का वो प्रोजेक्ट था, कि उस पे प्राइस था कि वो ओपन चैलेंज था पूरी दुनिया को कि आप कहीं से भी हो, आप अगर स्पेस में चलता हुआ रोवर बना सकते हो, यू आर ऑल वेलकम. सो इजराइल की एक कंपनी है, सो उसने उसमें भी 3 लोगों ने ऑप्ट किया कि उन्होंने कहा कि हम करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे वो पूरा प्रोग्राम आगे बढ़ा और उन्होंने 8 साल के ऊपर लगा दिए वो पूरा बनाने में. और एट द एंड जब वो प्रोग्राम क्लोज हो गया, सो उन्होंने बोला कि नहीं, अब प्राइस तो नहीं है, लेकिन तो उन्होंने कहा फिर भी हम बनाएंगे. सो उसके लिए भी उनको बहुत सारे कई बार फाइनेंस की दिक्कत झेलनी पड़ी, उनको बहुत सारे लोगों के पास पहुंचना पड़ा. सो उसके बाद उनका जब प्रोजेक्ट कंटिन्यू हुआ, जब वो फाइनल स्टेज पहुंचे और जब यहाँ से उनको लॉन्च मिल गया, तब जाकर उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ. सो मैं ये कह रहा हूँ कि एक छोटी सी मशीन बनाने में अगर हमें 8 से 9 साल लग जा रहे हैं, तो सोचो कि अगर हम इसको बड़े लेवल पे ले जाना चाहें, मार्स या किसी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि वहां पे ऐसा कुछ हम ऑब्जर्व कर पाए, डेवलप कर पाए, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. और हम लोग आराम से एस्टिमेट कर सकते हैं कि 2060 तक ह्यूमंस कहीं नहीं जाने वाले. ये तो ऑब्वियस सी बात है. अगर हमारा एट द एंड फेज ऑफ 21st सेंचुरी अगर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि हम काइंड ऑफ हमने वो डिकोड कर लिया कि हम टाइम ट्रेवल कर पा रहे हैं, या हम वर्म होल्स को यूज कर पा रहे हैं, सो वो अलग चीज है. बट उससे पहले आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी. भाई उसमें उसकी बात ये है ना कि टेक्नोलॉजी की, भाई अगर तुम डेवलप भी कर ले रहे हो, ठीक है, तो वो कितनी अफोर्डेबल होगी. ठीक है, क्योंकि शुरुआती फेज में, क्योंकि अभी भाई, क्योंकि ना मैं पढ़ रहा था तो स्पेसएक्स का प्लान है कि कुछ लोगों को पहुंचा दे 2050 तक वहां पे कॉलोनी बसाने के लिए. अब मुझे नहीं पता वो कैसे करेंगे भाई, ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल है वो भी. अगर तुम टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर ले रहे हो, फॉर एग्जांपल एंड ऑफ 21st सेंचुरी के तुम डेवलप भी कर ले रहे हो, तो भी भाई वो कितनी अफोर्डेबल होगी. वो उस वक्त भी बहुत महंगी होगी. अगर तुम ऐसी टेक्नोलॉजी बना भी ले रहे हो, उस वक्त भी वो बहुत ही महंगी होगी. उसको फिर अगले 100-150 साल लग जाएंगे उसको उस लेवल पे लाने के लिए. जैसे अभी एयरप्लेन है ना कि मोस्टली हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, लेकिन आज से तो है नहीं एयरप्लेन तो 100 साल से है. तो भाई उसी तरीके का कुछ होगा. तो शुरुआत में तो भाई वो बिल्डिंग और R&D पर्पसेस के लिए ही यूज किया जाएगा उसको, टेक्नोलॉजी को. तो ये चीज है भाई. और रही बात भाई वर्म होल वाली टेक्नोलॉजी, तो वो मुझे नहीं लगता अभी आने वाली भाई. अभी मतलब उसके बारे में सोचना ही मतलब कोई फायदा ही नहीं भाई. कहीं से पॉसिबिलिटी दिखी नहीं रही, क्योंकि उसके लिए ना तुमको बहुत ज्यादा फिजिक्स के लॉ ब्रीच करने पड़ेंगे. एक्चुअली में तुमको फिजिक्स की बहुत ज्यादा समझ चाहिए. इसमें तो क्या है ना कि तुम्हें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहिए इस सब्जेक्ट में, कि जितनी तुम टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सकते हो, मे बी जल्दी तुम भेज सकते हो. इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा फिजिक्स के लॉ तुमको ब्रेक करने पड़ेंगे. लेकिन भाई वो जो वर्म होल और टाइम वाला कंसेप्ट है भाई, उसमें तो फिजिक्स के लॉ ही तुमको ब्रेक करने पड़ेंगे एक्चुअली.
Right. वो करना बहुत मुश्किल है भाई, वो तो बहुत ही मुश्किल है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी हमने वर्म होल्स डिकोड नहीं किए और हमारे पास ग्रैंडफादर पैराडॉक्स आ गया, जिसपे एक पूरी की पूरी मूवी बन गई नेट। सो उस पे उसके ओ बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और मतलब लिटरली यार, अभी हमने अपना पहला स्टेप भी नहीं रखा है उसमें, वर्म होल्स में, और उसके रिलेटेड थ्योरीज आगे कि अगर क्या होगा कि अगर मैं पास्ट में जाऊं और अपने ग्रैंडफादर को मार दूं तो क्या मैं जिंदा रहूंगा। भाई तुम लोग करंट फोकस कर लो, या तुम करंट में डिकोड कर लो कि वर्म होल्स कैसे जाते हैं, फिर तुम फालतू की थ्योरियां बना लेना। और क्रिस्टोफर नोलन को आइडिया मिल गया, उन्होंने मूवी बना दी, बहुत बढ़िया। उसमें भी बात करेंगे एक किसी दिन डिटेल में, क्या है ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, क्योंकि ये इस पे इंसेप्शन भी बन चुकी है और इस पे टेनेट भी बन चुकी है, बहुत सारे मूवीज हैं। ठीक है। There is alternative science that says कि time travel possible है ही नहीं। राइट। बोलते कि like this is present, this is future, this is past in this very same moment. You cannot go back. And even if you go back, things won't change. Somehow inevitable will बस happen. वही चीज हो सकती है कि रिलेटिवली तुम कह सकते हो, रिलेटिव हो सकती है, तुम एक्चुअली में पीछे जैसे ब्लैक होल्स के बाद जाते हो तो कुछ लोग कहते हैं कि इवेंट होराइजन के बाद से टाइम एक्चुअली स्लो होना शुरू हो जाता है। स्लो हो जाता है। तो हाँ, तो वो फिर एक रिलेटिव फिनोमेनन है ना, कि वहां पहुंचने के बाद एक्चुअली में वो रिलेटिव है ब्लैक होल्स के और तुम्हारे, तो वो चीज वो रिलेटिव फिनोमेनन है। अगर तुमको एब्सोल्यूट में कहीं भाई अपने ही जगह पे वापस जाना, तो फिर भाई वो हो भी सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता, लेकिन रिलेटिव में तुम हो सकता है कि जा सकते हो उस, अगर तुमको कुछ बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तुमने हासिल कर ली, तो वो चीज है। एब्सोल्युटली तो भाई मुझे we have actually landed one spacecraft on a passing asteroid once. Okay. Yeah. I don't remember the name of the spacecraft. Sorry, aircraft. So in that probe, it has found that that a particular asteroid has oxygen and atmosphere. But even if you want to colonize even that asteroid, the speed with which it moves, are humans will humans be able to survive that? Because Nope. we are accustomed and made and born because of the kind of environment that we have got here. Not made for some other kind of extreme environment. Will have to adapt a lot, and that too with resources that we will carry from the earth. So Right. it's stupid in a way. भाई उसके लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन ही करनी पड़ेगी। That's good. Like if you space mining, get some minerals from space, then in that case a space exploration is not only going to help humanity as a whole, but it will create a mark also, and it will help us in a lack of resources also. But if you want to talk about colonizing something, it's not going to happen. Maybe some other kind of organisms can be there, like water bear is small water bear can actually survive the space radiations. Humans cannot, but they can. Launch into space and they remain unaffected. So some other kind of organisms, the ones that are deep beneath the ocean, are living in extreme conditions. There are thermal vents inside the space, deep inside the space, and they ooze out sulfur, which is toxic to us, but that is nutrient for some other kind of organisms. So those kind of organisms, maybe they can survive and you can try to colonize them, but I don't think humans can adapt for long. Even if they make their mark there and they create a history there by living for some time, I do not know if they will be able to reproduce there. And when they reproduce, I don't know what kind of babies will be taking birth, with defects or with this less bone density, or There how is much a lot of. can you even give to small babies there? Yep. I don't think there is a possibility of small kids growing up there as per the next century, because वहाँ पे जितने harsh condition होगी उनका कुछ ना कुछ तो problem हो जाएगी. I don't think that they will survive. And even in best possibilities, I don't think really means thinking about all of those factors, considering all of that, I don't think there is a good possibility. And even a mother would like to raise their kid on a planet like Mars, where there are such kinds of complications.
So and talking about reproduce, humans will reproduce on anything. Humans don't stop. So you can't doubt on humans on that. हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है. But about the conclusion. So I think exploring the cosmos is not a bad move, and there are endless possibilities out there. और अगर हम चाहें तो हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं. वहां के मिनरल्स आप अपने लिए ला सकते हैं, या एक काम करो, यहाँ के जितने जो गंदी चीजें हैं ना वो उठा के मार्स पे छोड़ाओ. थोड़ा सा प्लेनेट साफ हो जाएगा, और थोड़े से लोगों को भी उठा के लेके चले जाओ. तुम्हारा माइक ऑफ है निष्ठा. I'm saying a very great idea it is. हाँ वो साफ हो जाएगा, वहां पे डाला वो अपने आप डिग्रेड हो जाएगा वहां के एनवायरनमेंट में. We are not even harming Mars there. क्योंकि यहाँ से थोड़ा लोड कम होगा तो फिर अर्थ अच्छे से चलेगी. तो ये चीज है. और टॉकिंग अबाउट मून, आई थिंक मून मिशंस वेर रियल, और उसमें काफी ज्यादा एफर्ट्स लगे थे यार. उसमें काफी ज्यादा पहला अपोलो मिशन था, उसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स की डेथ भी हुई थी. सो हाउ कैन समथिंग लाइक दैट बी फेक? So I think those conspiracy theories are just bullshit. और लोगों को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि उसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं, बहुत सारे सालों की मेहनत लगी है. So कुछ भी ना बोले. और I think I believe in Elon Musk because he has a very great vision. So I think there are a lot of possibilities, a lot of ideas, and till the time he will be of 70, I think that he will do a lot of things for Earth and human beings. But colonizing Mars is a very deep project and very far project as per the current status. So I think it will need a lot of other evolutionary things as well. So yeah, this is somewhat my conclusion of the whole topic, that there can be a possibility, but it's very complicated, in simple words. भाई मेरा इस पे यही है, मतलब डिस्कवरी करना ह्यूमंस के, जब से ह्यूमन काइंड आया है तब से ही जो है वो डिस्कवरी करना उसके जो है जीन्स में रह रहा है, ब्लड में रहा है, तो वो तो करेंगे. लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज है पैसा, ठीक है, टेक्नोलॉजी, और कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ह्यूमन के अंदर. बिना उसके किए मतलब बहुत इम्पॉसिबल चीज है कि आपको मार्स को कॉलोनाइज कर सको. उसके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं दिख रही है. तो मेरा तो यही कंक्लूजन है कि फिलहाल ये बहुत फार फेच्ड ड्रीम है. कई लोगों को लगता होगा कि अगले 10-20 सालों में हम पहुंच जाएंगे, लेकिन ये बहुत फार फेच्ड नहीं होगा. राइट. Adding to that, genetic cloning and biotech engineers will have a lot of money and industry growth in this if we actually think to send genetically modified humans there or cloned humans there. That can happen. But if they are superior than us, then again the threat is there that they will overpower us. So we will have to create someone who will listen to us, but is physically strong to survive the space radiation. I guess Elon Musk is working on same as well. I guess Himanshu. हाँ, ये भाई चाइना ने एक एक्चुअली मैं 1 या 2 साल पहले मैंने पढ़ा था, एक शायद कोई बच्ची उनके यहाँ जन्मी है जिसको उन्होंने ऐसा कुछ मॉडिफाई किया है कि उसको कभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस नहीं हो सकते. ओके. हाँ, इसका मैंने पढ़ा था कहीं पे, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैंने पढ़ा है. आर्टिकल का नाम नहीं, अगर मुझे मिल जाता तो मैं लिंक कर दूंगा. ओके. लेकिन जो ये मैंने कहीं पढ़ा है तो जो है ये है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है. चाइना है इसमें, चाइना इसमें भी अपने पांव पसार रहा है. और कई को क्रायोजेनिक से सुना है तुमने? वो यूएस में कुछ 70 लोग हैं जो क्रायोजेनिक पॉड्स में बंद हैं मरने के बाद. उनको इसीलिए रखा गया क्रायोजेनिक पॉड में ताकि उनको ना जब फ्यूचर में टेक्नोलॉजी है तो उनको वापस जिंदा कर जा सके. एक बास्केटबॉल का लेजेंड प्लेयर भी है शायद उसमें. ओके. हाँ, तो ऐसा नहीं है, जेनेटिक में भी चल रहा है, लेकिन अभी भाई बहुत बहुत प्रिलिमिनरी लेवल पे. Okay. So closing this episode, I hope you guys like this episode and you find it helpful. और अगर आपको अच्छा लगा then do subscribe, like, share, whatever you want to do, and we'll keep presenting new topics to you and on a different scale with fact-based information. And yeah, this was it for this episode. On Mars soon. Yeah. I want to go on Mars. I want to die. That's why I want to go.
एक्सप्लोर करते करते मरेंगे ऐसे थोड़ी